नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर पर और यहां पर इंग्लैंड से महिला आई हुई हैं, तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस आंदोलन में आकर उनको किस तरह का महसूस हुआ। जो उन्होंने न्यूज़ सुनी थी कि भारत में आंदोलन हो रहा है और यहां पर आने पर उनको कैसा महसूस हुआ, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप इंग्लैंड से यहाँ आए, आंदोलन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा मीडिया के जरिए, तो आपको यहाँ आने के बाद कैसा फील हो रहा है? How do you feel here after coming here? I'm very happy to be here. I've been meaning to come here for some time. I've been following the farmers' protest online. It's just unfortunate the media are not covering it very well. So I came here myself to find out, ask some questions and meet the farmers themselves and speak with them. यहाँ पर जो आने के बाद जो आपने देखा कि ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या किसानों की हकीकत है, तो उसमें कैसा आपको लग रहा है? What is the situation of farmers on the ground? Well, I have to say that one thing is the organization is amazing and the donation work and all of the way the farmers are actually functioning here. But the thing that concerns me is that the farmers have actually been left on the road because they've been stuck here. They're stuck here, they can't move. So it's actually a very depressing situation. And as I understand it from talking, many of the farmers, I think 370 farmers have died, and there's been accidents and there's been suicides, and this is tough going. This is a serious protest for a serious matter, and my hope is that the world get to understand what is going on here, because this affects not just the farmers, it affects all the people of India. In fact, it affects all the world, because everybody's, we have so many protests going on in Europe, and you don't know here that there's protests going on in Europe and England and France and Germany. Lots of protests are going on, but the media are not covering any of this. The same for the farmers' protest. We're not finding out anything over there in England, nothing at all. So that's why I've come here, to find out for myself as a human being with humanity, whether it's India or wherever, what is actually going on and how the farmers came into this situation and what it is that they're fighting for. It must be something amazing and special, right? Which it is. So I just hope with my heart of hearts that there is some kind of negotiation can take place, and these wonderful people that are fighting for their future and their past and the future generations and their skills of working with the land can keep going. आप अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए हमारे। Give your introduction and how did you know about the protest going on? My name is Jan Graveson. I'm from England. I've been staying in India, and I came to know about this actually from Instagram, believe it or not. And then I started understanding what's going on, and I started to follow the farmers' protest so much that I thought I can't watch the videos because I'm not sleeping at night. I'm thinking about these people. My background also, I have to tell you, is mining. My father was a miner. I've come up from a very poor background, so I understand about protesting. I understand about striking and fighting for your rights because it's my background. So this is how I resonate with these people. These people are my people. I understand this. From my heart, I really support these people and what they are trying to do. And it's important for every single person, not just the Indian people, all of us. Because there is a lot of things changing in the world very rapidly, with what's going on. And everywhere in the world, people are losing their rights. जी मैम, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम योगिता सुहाग है। जो इन्होंने बताया, तो हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करके बताने का कष्ट करें, ताकि दोनों तरह के हमारे जो हिंदी और अंग्रेजी के दोनों दर्शक हैं वो समझ पाएँ बात को। एक्चुअली ये बोल रही हैं कि एक एक्ट्रेस हैं, मुंबई में रहती हैं, ओरिजिनली ये इंग्लैंड से हैं, और वो यहाँ पे आई क्योंकि वो फार्मर्स की देखी नहीं गई, उनसे जो वीडियोस वगैरह वायरल होती थी वो उनसे देखी नहीं जाती थी। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे आना है और फार्मर्स के साथ विज़िट करना है, कि मेरे को ओरिजिनल ग्राउंड रिपोर्ट देखनी है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो इन्होंने गाज़ीपुर विज़िट किया, तो राकेश टिकैत जी ने स्कार्फ भी उनको दिया, गले में डाला,
कि किसानी का कलर है, उनका वेलकम किया है। वेलकम किया। और गाज़ीपुर पे भी हम गए थे, फिर हम सिंघू पे गए, सिंघू पे भी हमने दिखाया था, इन्होंने बाज भी पकड़ा, हाथ पे चील बिठाई थी जो निहंग बिठाते हैं। फिर हम टिकरी लेके आए ने, और टिकरी पे 20 to 25 किलोमीटर्स का जो कट लगा हुआ है वो भी हमने दिखाया इन्हें। और नाउ शी कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई। ये दलाल खाप में भी गई, वहाँ उनसे भी बात की ताऊजी औरों से, तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स थे कई। और ये फार्मर्स को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती कि लुक एट देयर फेसेस, उनके चेहरे देखो एक बार कि वो किसी भी एंगल से टेररिस्ट नहीं लगते मुझे, तो ऐसा उन्होंने बताया मुझे। और मोर ओवर जर्नी वॉज वेरी इमोशनल, काफ़ी जगहों पे ये इमोशनल हुई। हाँ जी, रोने लग गई सच्ची। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो बाहर के विदेश से आकर भी इंसान इतनी फीलिंग से वो इमोशनल फीलिंग ले रहा है कि वो रो रहा है। तो और हमारी सरकार है जो कहीं ना कहीं कुछ भी सुन रही है। बहन जी आई हुई हैं, आप पश्चिम जी जी ये पढ़ाती भी हैं एक्चुअली बच्चों को वहाँ पे जहाँ ये रहते हैं। हाँ जी, शी इज़ ऑल्सो अ टीचर, तो ये पढ़ाती भी हैं। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? I've been teaching children in India for a few years, in singing, music, acting, dance, and I love children very, very much, but I particularly love the Indian children because they're so full of life, and I care very much about the future of India. And I'm not Indian, but I care very, very much about the future of India. Like, India's almost, how can I say this, more to me than my own country. This is how much I love India, and बोल रहे कि भारत देश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और बिल्कुल इंडिया के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। और ये कह रही कि मैं बच्चे भी पढ़ाते हैं, एंड हम पिलर नंबर 755 पे टिकरी बॉर्डर पे भी बच्चे पढ़ाते हैं। जो यहाँ पे स्कूल चला रखा है किसानों ने, तो वहाँ पे हम बच्चे पढ़ाते हैं। जो कविता हमारी बहन बैठी है, ये डेली यहाँ पे आके बच्चे पढ़ाती हैं। तो जो स्लम के बच्चे आए उन्हें गैदर करके हम यहाँ पढ़ाते हैं। हाँ जी, जगदीश बराड़ जी का ये यहाँ पे वो है। हाँ जी, बहन जी नमस्कार। नमस्कार ब्रदर। जो बाहर से आकर भी लोग इतना इमोशनल हो रहे हैं, उनके हार्ट पे लग रही है ये चीज़, और सरकार कहीं भी सुनाई नहीं कर रही इन बातों को, और किसान यहाँ पर परेशान हो रहा है 4 महीने 4.5 महीने से, और इतनी शहीदियाँ हो चुकी हैं। उस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो बाहर से लोग आते हैं वो भी इमोशनल होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इमोशनल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से बच्चे से लेकर के 6 महीने के बच्चे भी लेकर के आई हुई हैं हमारी महिलाएं गोद में, और एक बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्ग तक यहाँ पर बैठे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो इमोशनल होंगे। कोई भी इससे जो हमारे साथ जो दिक्कतें परेशानियाँ हो रही हैं उनको देख करके हर आदमी इमोशनल होता है, उसको मतलब ठेस पहुँचती है। बहन जी, लेकिन फैमिली को मिला था मैं, वो फैमिली पंजाब से आई थी, और वो जो महिला थी उनके 2 बच्चे थे जुड़वा, और वो 3 महीने के थे, वो भी यहाँ पे संघर्ष में डटे हुए। बिल्कुल, ऐसे ऐसे बच्चे तो मैं आपको पता नहीं कितने सारे बच्चे दिखा दूंगी जो 2-2, 3-3 महीने के 6-6 महीने के बच्चे भी साथ में लेकर के आई हुई हैं। और इतनी गर्मी में आपको पता है कि परेशानी भी होती है, बच्चे भी परेशान होते हैं। तो ये चीज़ें रियल में, ये चीज़ें हमें देख करके बहुत दुख होता है, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन गई कि हमें इन रोडों के ऊपर बैठना पड़ गया, क्योंकि हमारी सरकार है, गवर्नमेंट, वो इतनी तानाशाह है कि इस तरह से हमें तानाशाही करके रोडों पे बैठा दिया और इतनी परेशान कर रही है, जिससे हर आदमी, कोई भी, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे किसी भी इंडिया में किसी दूसरी स्टेट का हो, बंगाल से भी आए हैं, तो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कंट्री का हो, हर आदमी को रोना आता है। ये रियल में ही बहुत ज़्यादा इजाज़ती हो रही है, बहुत ज़्यादा पूंजीवाद हावी होकर के हमारे ऊपर तानाशाही की जा रही है। तो ये हर आदमी को, हर को मतलब ठेस पहुँचाती है। किसान